Hello students, today I am going to start the fifth lecture of polymers, and in today's class we are going to discuss about two important type of polymers. One is polyamide and polyamides and the other is polyesters. Now let's start with the polyamide polymers. Polyamide polymers, these are generally known as nylons. They are known as nylons because they were simultaneously prepared in the two countries, that is one is in New York and other in London. At the same time they were prepared, so it is termed as nylon, and they are termed as polyamide polymers because they contain amide linkage. Amide आपको पता है क्या होता है, CONH2, ये linkage present होती है CONH, ठीक है. So this linkage is present, and two important types of polyamides are nylon 6 and nylon 66. Nylon 6 and nylon 66. Nylon 6 is a homopolymer. It is made up of only one monomer, one type of monomer, whereas nylon 66 is a heteropolymer. It is made up of more than two different type of, using two different type of monomers. Let's start with the nylon 6. Nylon 6, it is prepared by heating epsilon caprolactam. Epsilon caprolactam क्या होता है? It is a ring like structure. This is termed as epsilon caprolactam. तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी पहले क्या होगा. As it contains nylon 6 means उसमें कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होंगे? 6 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होंगे इस रिंग में. और अमाइड लिंकेज है इसलिए एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा. बाकी की सभी लिंकेजेस कार्बन से लिंक कर दीजिए, C डबल बॉन्ड O कर दीजिए, ठीक है. N के पास एक H कर दीजिए और बाकी की लिंकेज CH2 हो जाएगी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. This epsilon caprolactam, on heating at a very high temperature of about 533 Kelvin, it undergoes the ring opening. उसका ring open हो जाता है and it forms a polymer that is termed as nylon 66. तो अभी ये कैसा हो जाएगा, यहाँ से bond breaking हो जाएगा so that it opens the ring from one of the side. अब देखो CONH ग्रुप अगर हमें बनाना है तो यहाँ से ring opening करेंगे हम so that it breaks on heating. तो ये कैसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये N टाइम्स लेंगे. यहाँ पर कितने कार्बन है अभी देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स है. तो CH2 5 टाइम्स और फिर NH और यहाँ पर N टाइम्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6. ठीक है, समझ में आ गया. फिर नाइलॉन 6 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है और मैंने क्या बताया आपको, लिखना कैसा है. एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम ऑन हीटिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 553 केल्विन. टेम्परेचर याद रखना है इसमें, 553 Kelvin in an inert atmosphere, it gives nylon 6. अब properties क्या है, as it first it is made up of homopolymer and its monomeric unit contains 6 carbon atoms, so it is nylon 6. Second point note down करो, it has high tensile strength and luster. ये हो गई properties. Uses, it is used in the manufacturing of tire cords, TYRE, tire cords, CORDS, tire cords, fabrics, ropes, shirts, bed covers, paints, brushes, etc. Okay, and it is resistant to dilute acids and bases. Okay, समझ गया अभी नाइलॉन 6 के बारे में. अब हम देखेंगे नाइलॉन 66. नाउ द नेक्स्ट पॉलीमर इज नाइलॉन 66. इट इज अ हेट्रोपॉलीमर made up of two monomeric units, and both the monomeric unit contains 6 carbon atoms. That's why it is termed as nylon 66. So one of the monomer is hexamethylene diamine. Hexamethylene
diamine. नाउ हेक्सामिथिलीन डायमीन जो है, एक एक्स्ट्रा लिख दिया मैं, हेक्सामिथिलीन डायमीन, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? हेक्सा मीन्स व्हाट? 6, मिथिलीन यानी क्या? CH2 ग्रुप, और हेक्सामिथिलीन डायमीन, और डायमीन यानी क्या? 2 NH2 ग्रुप रहेंगे, तो 6 टाइम्स CH2 ग्रुप रहेगा और एक NH2 ग्रुप यहां और एक NH2 ग्रुप यहां। समझ गया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड द अदर पॉलीमर इज एडिपिक एसिड. Adipic acid, it is a acid which contains 2 carboxylic group and total number of carbon atoms कितने होने चाहिए? 6. तो 2 COOH ग्रुप रहेंगे इसमें, प्लस अब कितने बचेंगे फिर? CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप्स 4 बचेंगे. तो अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा? CH2 COOH, यहाँ पर भी COOH, और ये कितने टाइम्स रहेगा? 4 टाइम्स. So it also contains 6 carbon atom and this one also contains 6 carbon atoms. Now this on mixing forms a nylon salt. तो अब ये मिक्स करेंगे तो it will give a nylon salt and there will be again a amide linkage. इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये देखो कैसा दिखेगा? CH2 6 टाइम्स NH, ये जो है इसमें से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो HOH रिमूव हो जाएगा. तो ये कैसे दिखेगा? C डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O, ऐसा. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने वाला है एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इसके ऊपर लिख देना हाई TNP. Okay, and the resultant which we are going to obtain here, इसे हम क्या बुलाते हैं? This is nylon salt. This is nylon 66 because it contains 2 such monomeric units which contain 6 carbon atoms. Okay, so this is about the method of preparation of nylon 66. This one is the clear reaction. उसमें थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया था, इसीलिए मैंने फिर से रिएक्शन लिख दी है आप लोगों के लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए. Now next thing which we have to study about nylon 66 is their properties. तो nylon 66 की properties में first it has a high molecular mass, it is a linear condensation polymer. नोट डाउन कर लो, high molecular mass linear condensation polymer. First point. Second point, high tensile strength. Third point, it does not soak in water or it does not absorb water. Now uses. It is used in making uses. It is used for making bristles of the brush. ठीक है, ब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए यूज करते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नायलॉन 6 एंड नायलॉन 66. नायलॉन 6 इज यूज टू मेक ब्रश whereas bristles are made up of nylon 66. याद रखिएगा, ब्रिसल्स बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक, एंड सर्जिकल सूचर्स, टेक्सटाइल फैब्रिक्स भी यूज करते हैं, बनाने के लिए यूज करते हैं इसे. टेक्सटाइल फैब्रिक्स etc. So this was all about nylon 66. Now we will see polyester. Now the next polymer is polyester. Polyester is also termed as terylene or Dacron. It is a heteropolymer and the two monomeric units which are used in the preparation of the terylene are terephthalic acid, wait a minute, dimethyl terephthalate,
and ethylene glycol. ओके इसमें ट्रांसइस्टरिफिकेशन होता है, देखेंगे पहले इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. इथिलीन ग्लाइकॉल, एथ यानी कितने कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स. ग्लाइकॉल मीन्स 2 OH ग्रुप. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल. प्लस what we have to add, that is DMT, that is dimethyl terephthalate. थैलिक एसिड आपको पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग कंटेनिंग 2 COOH ग्रुप एट द पैरा पोजिशंस इज टर्म्ड एज थैलिक एसिड. और अब ये टेरिथैलेट बोल रहा है, मीन्स ये क्या है, एक ईस्टर है. तो अभी वो ईस्टर कैसा रहेगा, देखो ये COOH और COOH अगर मैंने लिख दिया होता तो ये क्या हो जाता, थैलिक एसिड. अब मैंने क्या बोला आपको, डाइमिथिल टेरिथैलेट. तो ये क्या है, एक ईस्टर है. अगर मुझे इसका ईस्टर प्रिपेयर करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H के जगह पे यहाँ पे कोई अल्किल पार्ट आ जाएगा. तो मिथिल बता रहा है तो ये OCH3 हो गया. और ये वाला भी पार्ट हटके H की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3. तो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स हो गए. एक ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल का, और ये क्या है, डाइमिथिल टेरिथैलेट. इसके भी n नंबर ऑफ एटम्स लेने होंगे और इसके भी n नंबर ऑफ एटम्स लेने होंगे. ठीक है. एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, that is zinc acetate and antimony trioxide. Zinc acetate and antimony trioxide. This on heating it removes methanol. क्या रिमूव करेगा, मिथेनॉल. तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन आपको बताया था कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं या कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमेशा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मिथेनॉल. तो इसमें मिथेनॉल रिमूव हो रहा है. अब ये स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा, ये स्ट्रक्चर में ये वाला भी जो H रहेगा वो आगे वाले में निकल जाएगा ना. ऐसा स्ट्रक्चर है एन टाइम्स. अब ये जो इस रिएक्शन है इसे हम पॉलीईस्टर क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इसमें ईस्टर लिंकेजेस प्रेजेंट होती है. तो देखो ईस्टर लिंकेज दिख रही है आपको. ईस्टर लिंकेज यानी क्या है, COO जो लिंकेज होती है उसे हम ईस्टर लिंकेज बुलाते हैं. तो इसमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, पॉलीईस्टर. ओके. इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर. हेट्रोपॉलीमर भी है, कंडेंसेशन पॉलीमर भी है, क्योंकि इसमें से लोअर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है. सेम नाइलॉन 66 में भी ऐसा ही था, कंडेंसेशन पॉलीमर. नाउ प्रॉपर्टीज, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड वाटर. इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज रेजिस्टेंट टू वाटर एंड केमिकल्स. ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज. Next is uses. It is used in making wrinkle-free fabrics. And it is blended by blending it with wool, with cotton and wool, so that terry wool और terrycot ऐसे नाम के compounds form होते हैं. It is also used in making bottles and resins. Okay, so this much is all about today's class. हाँ, one more thing कि phenol formaldehyde and related polymers जो है वो इस बार deleted portion में है, इसीलिए हम वो उसके polymers को discuss नहीं करने वाले हैं. ठीक है. So this much is enough for today's class. We will see the next type of polymers in the next class. Thank you.